Hello everyone, myself Anup. Welcome to the Study Warriors. Today we are going to discuss on the topic geography, and it's having its various subtopics that we will discuss throughout this series or the course called geography by me. Okay, so today we will discuss about Indian geography. So basically, what is in means what are the geographical features that India is having? We will discuss about the that geographical features about throughout this Indian geography course. Okay, so first of all, you have to know India is the one and only country having all the geographical features, including the mountains, deltas, coastal lines, and peninsula and rivers, and then lakes, and it's having its ocean, seas. So these are the various geographical features India is having. We will discuss one after one. So before we discuss about that geographical features, you should must know where what's its India's size and location. Okay, so how it's having, what causes it so having so many geographical features. So we will study about that, then we'll move further. So let's start with size and location of India. So this Indian map that I have inserted this photo to just look around the Indian map, so that the concepts or the features that I will tell you, you all your concepts would be clear more. So I'll get back to the map again. So what's its size and location? First of all, size. So India is the seventh largest country and second in terms of the population. So you should know the top 10 largest countries of the world. So first of all, the largest country is Russia, then come Canada. I think the third is China, fourth USA, fifth come Brazil, sixth Australia, and the seventh is India. Okay, then eighth is Argentina, ninth Kazakhstan. Sorry, Kazakhstan. Yes, it's Kazakhstan, and the tenth one is Algeria. So these are the top 10 countries, top 10 largest countries in terms of the areas, and in terms of the population, India stands after the China. So you should be knowing the top 10 largest country of the world. So as you know that India is the mother of history. Okay, and it stretches from the snow-capped Himalayas to the sun-drenched coastal lines. Means from the Himalayas, India is extended from the Himalayas to the coastal lines till Kerala and Tamil Nadu's coastal lines, from Thar Desert in the west, or the Gujarat dry desert, cold desert from the west, to the Brahmaputra river flowing in the east. So this is the geographical a definition, geographical definition you can say about the India. Okay, so India is having its rich history, and it's having the rich geographical features also. And what's its total land area? It's 32 lakh 87,263 kilometer. It's a total area. So you should also know what its area from the north to south and from west to east. So you should know from north to south, India is having 3,214 kilometer. India is extended from north to south, and from west to east, sorry, from west to east it is 2,933, or it might be 34. I'll take 34, or it might be 2,933 kilometer also. Okay, so these two values, and that one, that 32 lakh 87,000, and that 263 square kilometers, you should be knowing this area. As well as India extends from north to south 3,214 kilometers, and 2,934 or 33 kilometers from west to east. Confirm the 2,934 or 33, because sometimes in NDA and in other civil services exam, the exact value are asked, and you should be cleared with your figures. Okay, now you should also knowing that India
in which latitude and longitude it lies. So 8 degree from here, 8 degree 4 minutes. Okay, from 8 degree 4 to here it's having 37 degree 6 minutes. So India lies between these two latitudes. You should also be knowing this. And in terms of longitude, it's from here to here, it's 68 degree 7 minutes. 68 degree 7 minutes. Okay, and till 97 degree. It's not, I'm not having that much of space, I will write here 97 degree 5 minutes. Okay, so these are the longitude and latitudinal value. This is the exact. Okay, so if you want to find any place or any city, you should be knowing its coordinates. Okay, so these are the coordinates of India. Okay, if you googled it, or if you want to know the location from India, from anywhere else, the exact location where India lies, so you should be knowing this latitudinal values. These are actually the coordinates of India. And then we'll move further with where the India lies in the whole world. There are two spheres, north and south. And from, if you take from west to east, eastern and western hemisphere. So India basically lies in the northern. Okay, in the northern eastern है, थोड़ा बहुत ईस्टर्न की तरफ रहता है. और यू कैन से वेस्टर्न, मीन्स इट्स बिटवीन नॉर्दर्न और ईस्टर्न, or northern and western. But basically we study that India lies in the northern eastern hemisphere. Okay, it's a little bit of ईस्ट साइड. ग्रीनविच मेरिडियन से आप जब देखेंगे तो ये ईस्ट साइड में आता है, एंड दैट वन इज वेस्ट. एंड फ्रॉम द इक्वेटर इट्स इन नॉर्थ, कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड विच आर द इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू इट. ओके, इमेजिनरी लाइन कौन सा पास होता है? 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द इंडिया. ओके, इधर से गुजरात से होके इधर से पास होता है. ओके, 23.5 degree latitude, which is the imaginary latitude, Tropic of Cancer passes through India. And you should be knowing from which state it's passed. Okay, I think it's 7 states, from Gujarat, then Madhya Pradesh, West Bengal, then I didn't remember all, maybe it's Jharkhand, Uttar Pradesh also. And then 2 7 sisters are there. I think the Assam and Arunachal Pradesh are the 7. I'm not clear with it, but you guys write in the comment section which are the 7 states. Okay, so I'll move further with knowing the. You should be cleared with this figure: 32,87,263 square kilometer. Okay, and then top 10 largest countries of the world. From now, the 4 corners of the India, which is the highest, lowest, westest and eastest most point of the India. You should be knowing this with its the exact place name, with the exact city, with the exact state. Okay, so which is the northernmost point is the Siachen Glacier in the Jammu and Kashmir, highest northernmost point of India, जहाँ पे अभी चाइना की नज़र बनी हुई है सियाचिन ग्लेशियर को भी एक्वायर करने की. ठीक, बट इट्स इन इंडिया. सियाचिन ग्लेशियर इज इन इंडिया एंड इट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट. क्लियर विद दिस पॉइंट? सो बिफोर कंटिन्यू, इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, post it in the comment section. I will resolve it. I will approach you. I will clear that doubt to you. Okay, as soon as I will see the comment. Okay, now the southernmost point is Kanyakumari. Now many of you will say that no sir, the southernmost point is Indira Point, but no, the Indira Point lies in the Andaman and Nicobar Island. Okay, but in India we are talking about that whole map. We are not talking about the islands. Okay, the Lakshadweep and Andaman and Nicobar are excluded in this whole 4 corners of India. Okay, the Kanyakumari is the southernmost point, and
if you take the both the islands, then the Indira Point in the Nicobar Island is the southernmost point of India. We consider that as the southernmost point of the India. Okay, I'll show you where is Indira Point in this. Here is the Kanyakumari, you can see this point, and here the Nicobar Islands are there. Here the Nicobar Islands are there. Sorry for that. Here the Nicobar Islands are there. Here is the, sorry, here is the Indira Point. Okay, in that. Now westernmost point, west of Gaur Mota, it's in, not int. Clear that it's int है वो, in है, sorry. In the Kutch region of Gujarat is the westernmost point. Generally north और southern most point पूछा जाता है. इट्स नॉट नेसेसरी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बहुत कम पूछा जाता है, पर आपको याद रखना पड़ेगा, ज़रूरी है. एंड किबित इन द अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया. इन बॉर्डर चाइना तिब्बत रीजन. ओके, चाइना का जो तिब्बत रीजन है, चाइना हैज़ एक्वायर्ड द तिब्बत, सो इट्स चाइनाज तिब्बत. सो वो बॉर्डर है एग्जैक्ट, चाइना मीन्स तिब्बत और इंडिया को चाइना और इंडिया को जोड़ता है. तो किबित नाम है उस प्लेस का. तो दैट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया. जाहिर सी बात है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला जो सनराइज होता है इंडिया में, सबसे पहले उसकी रोशनी कौन से रीजन में पड़ी, तो जब ईस्टर्न मोस्ट में वहीं पे सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ेंगे. तो द आंसर वुड बी किबित. ऐसे दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनडीए में, खासकर ये पूछे जा सकते हैं. तो एक्चुअली जो मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ ना, दैट इज़ बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एनडीए प्रिपरेशन एग्ज़ाम, जो 12th के साथ देते हैं. एंड देन आफ्टर 12th अप टू 19.5 ईयर्स के, जब तक आप नहीं हो जाते हो तब तक आप देते हो. अगर आपको एनडीए का एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न बताना है कि क्या आता है क्या नहीं आता, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा. होल एनडीए में कैसा क्या किया जाता है और कौन सी बुक्स आपको चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा. बेसिकली अगर आपको जियोग्राफी का भी बुक चाहिए तो मैं उसके बारे में बताऊंगा. जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स है, सब के बारे में ना. अब जियोग्राफिकल एक्सट्रीम्स इंडिया में कितने सारे जियोग्राफिकल हैं भाई, कि इंडिया में सबसे गर्म प्लेस, ठंडा प्लेस, हाईएस्ट पीक, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट डेजर्ट. भाई प्लेट्यू कौन सा है सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है इंडिया में, सबसे बड़ा सॉल्ट लेक कौन सा है इंडिया में. तो दैट ऑल आर नोन एज जियोग्राफिकल एक्सट्रीम्स. सो बेसिकली विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन दिस, हॉटेस्ट प्लेस टिल रिकॉर्डेड इन द इंडियन हिस्ट्री इज ब्रीवाली, बीकानेर, राजस्थान में. ठीक, यू शुड बी क्लियर विद दिस नेम. ब्रियावाली, बीकानेर, राजस्थान में है. 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस. ठीक, 19th ऑफ जून 1991 में 56 डिग्री सेल्सियस इसका हॉटेस्ट टेम्परेचर इंडिया में अभी तक सबसे गर्म प्लेस ब्रियावाली, बीकानेर, राजस्थान में है. ठीक, ये आपको याद भी रखना कितना मैक्सिमम गया था और कौन सी तारीख थी. देखो 5 जून 1991. ओके, तो ये आपको तारीख भी याद रहनी चाहिए. ओके, अब कोल्डेस्ट प्लेस द्रास लद्दाख में, क्योंकि दैट्स हाईएस्ट पॉइंट. और कितना गया है कोल्डेस्ट टेम्परेचर, कितना गया है, -45 डिग्री सेल्सियस. और ये बहुत पहले गया था, आई थिंक 1903 में हाईएस्ट कोल्डेस्ट टेम्परेचर, कोल्डेस्ट मीन्स हाईएस्ट टेम्परेचर ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया था, -45 डिग्री सेल्सियस 1903. डेट था आई थिंक 3 दिसंबर 1903 में. आई नॉट क्लियर द डेट आप देख लेना, 3 दिसंबर मंथ ही था. सो 1903 था. ओके, अब हाईएस्ट पीक K2 है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन. ओके, 8611 मीटर. और हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8818 मीटर. यू शुड बी क्लियर विद द पीक एंड इट्स हाइट, कितने मीटर ऊंचा है. ठीक, ओके. और लॉन्गेस्ट रिवर
गंगा है कितने कितने में बहती है? 25,01,10 मीटर, 110 किलोमीटर। ओके, इतनी दूर तक गंगा। वैसे गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओके, गंगा ओरिजिनेट होती है देवप्रयाग से, देवप्रयागराज। देवप्रयागराज जब अलकनंदा एंड भागीरथी आर द टू रिवर्स। ओके, जब वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं, फिर गंगा बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये टू ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, अलकनंदा और भागीरथी में। ठीक, फिर ये देव प्रयागराज जो हरिद्वार के शायद पहले पड़ते हैं। यस, इट्स बिफोर हरिद्वार, या हरिद्वार के पास में ही है देव प्रयाग। वहाँ पे ये अलकनंदा एंड भागीरथी दे कंबाइन एंड दे देन द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम देयर। ओके, तो वहाँ का जो गंगा रहता है ना, एकदम प्योर रहता है, एकदम प्योर वाटर रहता है। दैट्स द आवर होली रिवर गंगा। बाकी तो फिर देन व्हेन इट्स कम पासेस थ्रू दिल्ली, आगरा, सॉरी दिल्ली में तो यमुना जाता है, आगरा में भी यमुना जाता है, बट बेसिकली व्हेन इट्स कम फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल रीजन्स, यूपी में जब आती है तो इट्स वेरी मच ऑफ पॉल्यूशन देयर। ओके, देन गंगा एंड यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। दैट इट्स जहाँ कुंभ नहाने जाते हो, संगम जिसे हम बोलते हैं, दैट्स गंगा। वहाँ पे गंगा के बारे में थोड़ी स्टोरी मैंने बता दी। ओके, गंगा किससे बनती है ये आपको याद रखना। अलकनंदा और भागीरथी दो रिवर हैं, गंगा के ही ट्रिब्यूटरीज हैं, बट वो ग्लेशियर से निकलने के बाद बट जाते हैं। देन दे फॉर्म देव प्रयागराज में जब मिलते हैं, वो देव प्रयाग बोल सकते हो आप, या रुद्र प्रयाग बोल सकते हो। दैट्स आर टू प्लेसेस जहाँ पे मिलते हैं, और फिर बहना गंगा बहती है, फिर देन इट्स अगेन यमुना में बैठ जाती है। देन और सारी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक कोसी, गंडक, तो यूपी और बिहार में जो फ्लो होती है। सो दैट गंगा के बारे में स्टोरी थी। अब लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजूली, ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र से बनी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक बार ओवर फ्लडेड हो गया था, तो तब ये बना था। नाउ अभी ये शायद ब्रह्मपुत्र जैसे जैसे थोड़ा अपनी चौड़ाई कम कर रहा है, तो ये आइलैंड एक तरह से डिसअपियर हो रहा है। बट इट्स द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली, इंडिया में भी है और पूरे वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली है, ब्रह्मपुत्र। 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लार्जेस्ट डेजर्ट यू ऑल नो, इंडिया इज हैविंग अ सिंगल डेजर्ट, थार डेजर्ट। अब एक चीज़ जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, डेजर्ट के बारे में सबसे रोचक बात हो गई कि सारे डेजर्ट हर एक कंट्री के वेस्ट साइड में क्यों रहते हैं। आप देखोगे सहारा, देन कालाहारी, देन गोबी डेजर्ट, फिर आटाकामा डेजर्ट, these are the major desert in the world, they all lie in the western part of the country. Why? वो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाना चालू करूँगा तब मैं बताऊँगा, अभी नहीं। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि कितना बड़ा है, 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट। लार्जेस्ट प्लेट्यू इंडिया में मात्र दो या तीन प्लेट्यूज हैं, बुंदेलखंड, डेक्कन और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, तो सबसे बड़ा इनमें से बुंदेलखंड डेक्कन प्लेट्यू है, 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ से पैदा है मैं आपको बताता हूँ। अभी जितना पढ़ा है उसको मैं देखा जाए, देखो ये है पूरा। एक सेकेंड, इसको रब कैसे करते हैं, एक सेकेंड मैं रब करता हूँ इसको। हाँ, क्लियर हो गया है। सो हम डेक्कन प्लेट्यू आता है, यू वुड सी ये जो मेजर प्लेन है, कर्नाटका, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इनके जो बीच में इधर डेक्कन प्लेट्यू लाई होता है। बुंदेलखंड थोड़ा महाराष्ट्र के भी पार्ट आ जाते हैं, बट उतने नहीं। बुंदेलखंड आता है, सॉरी छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर आता है महाराष्ट्र साइड, और बुंदेलखंड इधर आता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साइड इधर आता है बुंदेलखंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और सॉरी, और भी बताना था, सियाचिन हमारा यहाँ पे है। ओके, लार्जेस्ट। और फिर हमने किसकी बात की थी, बीकानेर, ये रहा ब्रियावाली। देन जो लैंड रिवर आइलैंड था वो हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के इधर एरिया में बहता है, जब ब्रह्मपुत्र ऐसे बह के ऐसे जाता है। ओके, सो इतना है, ठीक।
हम नेक्स्ट मूव करते हैं विथ, आज हम शायद जियोग्राफिकल एक्सट्रीम्स तक ही करेंगे। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी उनके हैं। और आपको हाँ K2 देखना था, वेट अ सेकेंड, हाँ K2 इज़ हेयर, यू कैन सी K2 है, नंदा देवी, फिर कंचनजंगा सेकेंड हाईएस्ट पीक है, फिर नंदा देवी आता है। ओके, ये तीन आपको याद रखने पड़ेंगे जियोग्राफिकल एक्सट्रीम। अब हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल्स आता है, सारावती रिवर भी याद रखना है। जोग फॉल्स कितना गहरा है, मतलब कितने ऊंचे से गिरता है, 253 मीटर्स की हाइट है जोग फॉल्स की। बेसिकली कर्नाटक में है। ओके, इसका स्टेट कर्नाटक है। कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर, आपको मालूम है सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात का ही है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज़ ऑफ गुजरात, बट ये हाँ गुजरात का ही है। लॉन्गेस्ट बीच मरीना बीच चेन्नई का है, 13 किलोमीटर। ओके, अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि मरीना बीच सबसे बड़ा है, काफ़ी बार आता है जब चेन्नई में मैचेस होते हैं इंडिया के। एंड देन ब्रकिश वाटर लेक, ब्रकिश मतलब सॉल्टी, ओके, सिनोनिम है। ब्रकिश मतलब सॉल्टी, सबसे खारा पानी का तालाब चिल्का लेक है, 916 स्क्वायर किलोमीटर। आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में सबसे बड़ा वाटर लेक कौन सा है, वो भी याद रखना है। बट मैं वो लेके नहीं आऊँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक में जियोग्राफिकल एक्सट्रीम्स में कुछ और पॉइंट जो इसमें छूट गए वो लेके आऊँगा। ओके, सबसे बड़ा टनल खरबूडे टनल है, आई थिंक मुंबई से गोवा होता है। खरबूडे टनल इज़ फ्रॉम मुंबई टू गोवा, 6.45 किलोमीटर का है। यू शुड बी रिमेंबर द, सॉरी डेस्टिनेशन नहीं लिखा, डेस्टिनेशन में लिख दूँ तो मुंबई है। आप पीपीटी मिल जाएगी, या आप अपने रिवीजन या जो भी नोटबुक बनाएंगे उसमें लिख दीजिएगा मुंबई टू गोवा, और ये सब पॉइंट्स भी नोट डाउन पक्का कीजिएगा। लार्जेस्ट कैनल इंदिरा गांधी कैनल है। इंदिरा गांधी कैनल का जो पानी आता है इंदिरा गांधी कैनल में, बेसिकली राजस्थान के जो डेजर्टी एरियाज़ में होते हैं, जो छेनाब, सतलज एंड देन इंडस, इंडस रिवर से इसका पानी आता है। बट जो 5 रिवर हैं जो फ्लो करते हैं पंजाब में, इंडस से भी आता है थोड़ा बहुत, उनसे भी आता है, बट बेसिकली इंडस से आता है, पंजाब से शुरू होता है, पंजाब नहीं कह सकते हो, मीन्स पंजाब और जो जम्मू कश्मीर रहता है, जहाँ से इंडस पाकिस्तान में जाने से पहले वहाँ से लिया गया है कैनल थ्रू राजस्थान के जितने भी डेजर्ट इलाके हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहाँ के लिए, ताकि वहाँ के लोग इरिगेशन कर सके और अपनी वाटर की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं। 682 किलोमीटर का है। लार्जेस्ट डैम भाखड़ा नंगल डैम पे सतलज रिवर पे बना है, 226 मीटर का है, ये आपको लार्जेस्ट डैम है वर्ल्ड का। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे तब करेंगे। ओके, अब देखो मेजर बाउंड्री लाइंस भी जो इंडिया का होता है, मेजर बाउंड्री, जो मेजर बाउंड्री लाइंस हैं, ठीक है, बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया और अफगानिस्तान को डूरंड लाइन बोलते हैं, जो इंडिया अफगानिस्तान जहाँ से जुड़ी रहती है, और इंडिया पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, और इंडिया और चाइना का मैकमोहन बाउंड्री बोलते हैं हम लोग। ओके, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन सब का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इनके लाइन का वैसे स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, आपको ये 3 नाम याद रखने, डूरंड, रेड क्लिफ और मैकमोहन। ओके, मैकमोहन, ओके, स्पेलिंग देख लीजिए, मैकमोहन नाम है, नाम सही से याद रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर ये इंटरव्यूज़ में पूछता है, जनरली एग्ज़ाम में कम पूछता है, एग्ज़ाम में रेड क्लिफ और डूरंड बहुत पूछता है। ओके, अब आइलैंड जो है इंडिया और अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल नाम है उस सी रूट का, वहाँ से जुड़ते हैं। ओके, 10 डिग्री चैनल नाम है उस रूट का, वहाँ से जुड़ते हैं। ओके, जो 10 डिग्री चैनल रहता है बेसिकली अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, सॉरी गलती से इंडिया और अंडमान और निकोबार ज्वाइनिंग निकल गया था, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल होते हैं एक और, जो लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ओके, और फिर आता है फिर ये 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मैरीटाइम लाइन बिटवीन द मालदीव्स और इंडिया का जो 8 डिग्री चैनल से जॉइन है, इसको हम बोलते हैं
अदिरी कंडू, ओके, अदिगिरी कंडू बेसिकली नाम है, पर हम उसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं जो जॉइन होता है। इसको कहीं कहीं माइक्रो कंडू भी बोलते हैं और अडिगिरी भी कंडू इसका नाम है। बट हम 8 डिग्री चैनल अगर अब बोला जाएगा तो मतलब ये है कि मालदीव्स और इंडिया को जो मैरी टाइम बाउंड्री होती है इनके बिटवीन, इनके बीच में, उसको हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। 10 डिग्री में आइलैंड और निकोबार सेपरेट होते हैं। 9 डिग्री में मैनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड, ओके, मैनिकॉय ही आइलैंड है एक लक्षद्वीप का, वो 9 डिग्री चैनल से। तो ये 3 चैनल जो मैंने बताया इनको आपको याद रखना होगा। ओके, सो शायद आज के लिए इतना ही होगा। यस, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्रेटर हिमालयस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ग्रेटर हिमालय से जितने निकलते हैं वो रिवर, और ईस्टर्न पार्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया जितना भी है, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, देन मेघालय और नागालैंड, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस ये आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पूरा आ जाएगा, हिमालयस आ जाएगा, साथ में इसमें हम जम्मू कश्मीर और स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट्स में जो पर्टिकुलर सिटीज़ होते हैं ना उनकी खासियत होती है। तो आपको कभी कभार सिटी का नाम याद रखना पड़ता है, क्योंकि पूछा जाता है कि इस सिटी की विशेषता है या फिर ये विशेषता किस सिटी में है। ओके, तो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो इंडिया का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया